हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 25 नवंबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट बारे पढ़ांगे कि हैमिल्टन पाथ ते सर्किट की हुंदा है। ये लास्ट आपां ने जिहड़ा कीता सीगा वो ट्रांसवर्स यूलर्स पाथ ते सर्किट बारे पढ़िया सीगा, जिस दे विच आपां ने किहा सीगा कि कोई भी अजिहा सर्किट जिहदे विच एज रिपीट नहीं हुंदी हैगी, वर्टेक्स रिपीट हो सकदा सी पर एज रिपीट नहीं हुंदी सी तां आपां उहनूं यूलर पाथ जां सर्किट कहंदे सीगे। ओके, तां ओह यूलर ग्राफ बन जांदा सी अपने कोले। तां इह भी उसी तरह ही हैगे हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट क्लियर। इन प्रीवियस सैक्शन वी हैव ट्रांसवर्स्ड ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस, एक बारी लैंदे सीगे। इस डिस्कस च आपां की करांगे कि ग्राफ थ्योरी इन विच वी हैव ट्रांसवर्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। इहदे विच आपां की करदे हैं कि सारे ਜਿਹੜੇ वर्टिसेस है उन्होंने कवर करना, उन्होंने ट्रांसवर्स करना है एग्जैक्टली वंस, एक बार करना है। क्लीयर। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ट्रांसवर्स जरूर करना, रिपीट नहीं करना हैगा गा। ठीक है, तो इनू किसने दिता सी? विलियम हैमिल्टन मैथेमैटिशियन सीगे एक, उन्होंने इस थ्योरी बारे दस्या गा। तो हैमिल्टन पाथ की डेफिनेशन की कहती हैगी, ये हैमिल्टन पाथ इन ए कनैक्टेड ग्राफ इज ए पाथ विच कंटेन्स ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। क्लीयर। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਪਾਥ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ। ਉਸ ਵਾਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੰਟੇਨਸ ਈਚ ਵਰਟੈਕਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੰਸ ਐਕਸੈਪਟ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर द फर्स्ट वर्टेक्स विच इज़ आल्सो द लास्ट। क्योंकि सर्किट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ सर्किट ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਵਰਟੈਕਸ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਜਾਂ ਪਾਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ ਸਰਕਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ यूलर ग्राफ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਜ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਜਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰ ਰਿਮਾਰਕਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਔਰ ਪਾਥ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਲ ਦ ਵਰਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਸਮ ਅਨਵਿਜ਼ਟਡ ਐਜਸ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਜਸ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਵਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਜਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਐਜਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਜਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਨਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਜ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਐਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਐਜ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਵਰਸਿਸ, ਜੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਵਰਸਿਸ ਹੈ ਦੈਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਐਨ ਐਜਿਸ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਐਨ ਵਰਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਐਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਐਨ -1 ਐਜਸ।
ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जे ग्राफ दे विच n वर्सिसिस है, n मीनस जे 3 वर्सिसिस है तो हैमिल्टन सर्किट दे विच भी 3 ही एजिस होणगियां, बट हैमिल्टन पाथ दे विच 3 - 1 2 एजिस होणगे। क्लीयर। थर्ड इज थ्योरी मे बी मोर दैन देयर मे बी मोर दैन वन हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट इन ए ग्राफ। तो ये भी हो सकता है एक जिहड़ा है ग्राफ उहदे विच एक तो ज़्यादा हैमिल्टन पाथ या सर्किट अपने कोले होण। उस तो बाद बेटा हाँ कुछ थ्योरम्स के रिजल्ट्स है, ठीक है, विदाउट प्रूफ। इन्हां दे प्रूफ नहीं है तुहाडे सिलेबस कल्ले आपां की करनी है, इन्हां दियां स्टेटमेंट्स जिहड़े रिजल्ट्स हैं उन्हां नूं ध्यान च रखना है, जिन्हां नूं आपां अगे सम सोल्व करन वास्ते यूज़ करांगे। जिवें कि फर्स्ट रिजल्ट है इफ जी बी लैट जी बी कनैक्टेड सिंपल ग्राफ, जी की कनैक्टेड भी है तो सिंपल ग्राफ है विद एन वर्सिसिस है जिहदे विच ते एन वर्सिसिस भी की है 2 तो ज़्यादा है, यानी कि 1 या 2 वर्सिसिस नहीं 3 वर्सिसिस या उस तो ज़्यादा होणगे वर्सिसिस जी ग्राफ दे विच। लैट यू एंड वी आर एनी 2 नॉन एडजेसेंट वर्सिसिस इन जी। यू तो वी की है अपने कोले 2 नॉन एडजेसेंट वर्सिसिस है इन जी मीनस कंटिन्यू वर्सिसिस नहीं है, तो डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी की होएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू एन होएगी। दैन जी इज़ द हैमिल्टन। जे डिग्री अपने कोले यू तो वी की ग्रेटर दैन इक्वल टू एन है, दैन आपां की कह सकते हैं कि वो ग्राफ की अपने कोले कनैक्टेड हैमिल्टन ग्राफ है। क्लीयर बेटा, समझ आ गया। एक अजिहा वर्टेक्स जिहदे 2 तो ज़्यादा वर्सिसिस है तो नॉन एडजेसेंट वर्सिसिस की डिग्री का सम ग्रेटर दैन इक्वल टू एन आ जाता है, दैन दैट ग्राफ इज़ द हैमिल्टन ग्राफ। हुण जिवें कि तुसीं बेटा आपां इहदी एग्जाम्पल लैनी है मैं, जिवें कि यहाँ आपां नूं एक ग्राफ दिता होया है। क्लीयर, आपां नूं पता है हैमिल्टन है कि नहीं है, पर आप चैक करांगे लास्ट थ्योरम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्टली काउंट द नंबर ऑफ वर्सिस इज़ 4। क्लीयर, एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। उस तो बाद आपां ने की कर लेना है 2 नॉन एडजेसेंट वर्सिस लेने, कोई भी लै सकते हो, ए तो सी लै सकते हो, बी तो डी लै सकते हो तुसीं, ठीक है, कोई भी 2 नॉन एडजेसेंट वर्सिस लै सकते हो। हुण जे आपां ए तो सी लैने है तो डिग्री ऑफ ए कितनी हो जाएगी 2, सी की भी डिग्री ऑफ 2, तो दोनों की डिग्री का सम कितना हो गया 4, दैट इज़ इक्वल टू अपने को लेके आ गया एन, क्योंकि ग्रेटर दैन या इक्वल टू एन होना चाहिए। जे डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, देयरफॉर दिस इज़ द हैमिल्टन ग्राफ। क्लीयर बेटा, इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि यह हैमिल्टन ग्राफ है। ओके, सैकेंड थ्योरम की कहती है कि जी बी कनैक्टेड सिंपल ग्राफ विद एन वर्सिसिस। जी जी अपने को कनैक्टेड सिंपल ग्राफ है विद एन वर्सिसिस, एन की गिनती 2 तो ज़्यादा होनी चाहिए है। एंड इफ डिग्री ऑफ वी ग्रेटर दैन इक्वल टू n/2, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जी है नंबर ऑफ वर्सिसिस के हाफ तो ग्रेटर दैन या इक्वल आ जाती है, दैन दैट ग्राफ इज़ द हैमिल्टन ग्राफ। उन्होंने आप कहांगे हैमिल्टन ग्राफ। ये भी चीज़ आप इसे ग्राफ तो शो कर सकते हैं। अपन पता है एन की वैल्यू कितनी है 4। कोई भी वर्टेक्स ले लो, ठीक है, कोई भी वर्टेक्स लता, सपोज आपने ए ही ले लिया, ठीक है, ए की डिग्री जे आप देखिए कितनी है, ए की डिग्री हैगी 2, तो आपने कहा सी डिग्री ऑफ वी ग्रेटर दैन इक्वल टू n/2, n/2 कितना हो गया 2, तो 2 के इक्वल आ गया, देयरफॉर सेकेंड रिजल्ट भी ट्रू हो गया। दिस इज़ द हैमिल्टन ग्राफ। ओके, नैक्सट इज़ द थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट की है कि एम जी अपने को नंबर ऑफ एजिस है इन ग्राफ जी, एंड एम की वैल्यू जी हैगी, ये रिजल्ट याद रखना 1/2 इंटू n² - 3n + 2 तो ज़्यादा है, एजिस की गिनती इस तो ज़्यादा है, दैन दैट ग्राफ इज़ कॉल्ड द हैमिल्टन ग्राफ वेयर n इज़ द नंबर ऑफ वर्सिस, m इज़ द नंबर ऑफ एजिस। आज चीज़ याद रखनी बेटा, n² - 3n + 2 का हाफ। तो ये भी तुसी आप इसे तो प्रूव कर सकते हैं।
यू मे काउंट द नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 एजेस है 4 वर्सिस है तुसी वैल्यू 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ एंड चैक कि दिस वैल्यू इज़ लैस दैन इक्वल टू एम ओके तो जो एन की वैल्यू आप 4 ये पुट की 4 पुट कर दो एन की वैल्यू 4 स्केयर 16 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 2 16 माइनस 12 4 प्लस 2 6 6 बाय 2 वैल्यू इज़ 3 आंसर क्या आ गया 3 आ गया जबकि अपने को नंबर ऑफ एजेस कितनी 5 तो मीनस ये की है 5 तो घट है 3 तो इट मीनस दिस इज़ द हैमिल्टन ग्राफ ओके तो हैमिल्टन सर्किट की बनेगा सौखा ही है तुहानूं पता लग ही जाएगा ए बी सी डी ए सिंपल ओके नैक्सट जिहड़ा हैगा बेटा इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान च रखना है कि कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू कि जे हैमिल्टन ग्राफ है कन्वर्स का मतलब क्या है कि जे कोई आपां ग्राफ हैमिल्टन ग्राफ दिता तो जरूरी नहीं कि तीनों कंडीशनस भी उत्थे सैटिस्फाई होणगियां ही होणगियां ओके क्लीयर पर आपां चैक करने वास्ते कि एग्जाम्पल्स दे विच सम्स दे विच कि हैमिल्टन ग्राफ आप कोई भी आह चीज़ है जी चैक कर सकते हैं जे उत्थों अपने को ये चीज़ सैटिस्फाई होंदी तो आप कह सकते हैं कि वह हैमिल्टन ग्राफ है पर जे आपां नूं हैमिल्टन ग्राफ दिता है तो जरूरी नहीं कि तीनों कंडीशनस उत्थे सैटिस्फाई होणगियां अपने को अजिहे कुछ ग्राफ है ਜਿਹੜੇ हैमिल्टन का है पर ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करते गे जिमें कि आ ग्राफ इन्होंने दिता हुआ है ये वर्सिस की गिनती हैगी 5 क्लीयर वर्सिस की डिग्री 5 है तो आप नॉन एडजेसेंट वर्सिस की डिग्री का सम करिए दैट इज़ 4 क्लीयर वो अपने को बड़ी नहीं हैगी देयरफॉर अपने को फर्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई होती क्लीयर कि हैमिल्टन हैगा कि जब पहले वर्सिस देखे ए बी सी डी ई ए वापस आप आ गए सारे वर्सिस कवर कर लिए एग्जैक्टली वंस टाइम क्लीयर उस तो बाद अपने को आंदा है कि इफ ग्राफ जी विद एन वर्सिस हैज़ लैस दैन एन एजिस दैन नो हैमिल्टन सर्कल इज़ पॉसीबल जे किसी ग्राफ दे विच एन वर्सिस है क्लीयर तो उहदे विच लैस दैन एन एजिस है ठीक है जिन्ने वर्सिस मीनस उस तो घट एजिस है तो वह ग्राफ कदे भी हैमिल्टन सर्किट नहीं बनेगा क्लीयर समझ आ गया बेटा जे एन वर्सिस है तो अपने को नंबर ऑफ एजिस एन तो घट है तो वह ग्राफ कदे भी हैमिल्टन सर्किट नहीं बनेगा इन हैमिल्टन सर्किट एनी वर्टेक्स कैन नॉट हैव डिग्री मोर दैन 2 ये भी चीज़ ध्यान रखियो कि हैमिल्टन सर्किट किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 तो ज़्यादा नहीं हो सकती है क्लीयर है बेटा बेटा ध्यान च रखनी है गल्लां कि एन वर्सिस की डिग्री है तो एन तो घट एजिस वाला ग्राफ हैमिल्टन सर्किट नहीं होएगा हैमिल्टन सर्किट दे विच किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 2 तो ज़्यादा नहीं हो सकती whenever we enter and leaves a vertex we delete all other edges incident on that vertex जो आप किसी भी वर्टेक्स च एंटर कर दें तो उस वक्त छड़ दें तो वो रिलेटेड जिन्नियां बाकी दियां एजिस है वो सारियां एलिमीनेट हो जांदियां क्लीयर बेटा हुण जिवें तुसीं फस्ट एग्जाम्पल है हाँ ये देखो आपां नूं दिता होया है तो जे आप इनू चैक करिए कि ये हैमिल्टन ग्राफ हैगी है ਜਾਂ नहीं हैगी क्लीयर तो फस्ट जिवें आप देखिए ई तो शुरू कर सकते हैं आप ई सी डी ए बी ठीक है इत्थों तक देखो आप सारे वर्टेक्स जिहड़े कवर कर लेगे एज आप छड्ड भी सकते हैं देयरफॉर दिस इज़ द हैमिल्टन ग्राफ ये हैमिल्टन ग्राफ तो है सॉरी हैमिल्टन पाथ ये हैमिल्टन पाथ तो है इस चीज़ से ध्यान रखने पर यह कि हैमिल्टन सर्किट नहीं बनेगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट की है ई लत्ता आपां ने आपां तो बाद की कर सकते बी तो बाद सी ते आ सकते सी तो बाद ई ते नहीं आ सकते है क्योंकि फिर अपने को पॉइंट है जो रिपीट हो जाएगा वर्टेक्स तो आप वर्टेक्स स्पीड नहीं कर सकते सी तो सर्किट नहीं बनेगा दिस इज़ ओनली द हैमिल्टन पाथ ये अपने को जो है ए बी सी डी ए हैमिल्टन पाथ भी है तो सर्किट भी है दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं उस तो बाद यह ग्राफ है जरा ए ई बी ई
ਵਾਪਸ ਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਟੈਕਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ ਨੋਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੋਥ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਵ ਬੋਥ ਈਲਰ ਪਾਥ ਐਂਡ ਈਲਰ ਸਰਕਿਟ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਪਾਥ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਰ ਪਾਥ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਫ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਜ਼ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਦੈਨ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਹੈਮਿਲਟਨ ਪਾਥ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਰਕਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਥ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਕਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਸਰਕਿਟ। ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।